हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लासेस। आज हम प्लस 2 के लिए सिलेबस आगे कर रहे हैं। इसमें हमारा चैप्टर 6 इज गोइंग ऑन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ऑन दिस चैप्टर टुडे 10th lecture, 9 lectures have been done on this chapter 6. Today on this chapter 6 continuously we are going forward. Exercise 6.1, 6.2 have been done, all the questions from NCERT book, and the increasing decreasing concept clear done in 6.2 exercise. Now forward today we are going for the next concept on this chapter. What is that? Maxima minima. So for that maxima minima today we have to discuss definition. Okay, how can say any function is maxima or minima on any interval. Okay, so first I want to say to you that in the maxima minima second derivative test is there. To say method to say the function is maxima minima. So what is this method? I want to explain. कि फर्स्ट डेरिवेटिव वी आर टेकिंग फॉर द एफ एक्स, एफ डैश एक्स. फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द एफ एक्स इज एफ डैश एक्स. यू नो एफ डैश एक्स मीन्स डी वाई बाई डी एक्स. से दिस इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो. से दिस इज द मेथड. ओके बेटा, से दिस इक्वल टू जीरो फॉर मैक्सिमा मिनिमा. ओके बेटा, फॉर मैक्सिमा मिनिमा. ओके, आफ्टर दैट you have to find the value of variable x. Okay, maxima minima what will be. Now after that implies that find out value of x. Find out value of x. Okay beta, find out values of x. I am explaining the method. Okay, then after that you will do the question, you will get the practice. Values maybe that value 1, 2 or more than 2 according to the function. This find out values of x. Okay, this implies let वो वैल्यूज जो आई हैं वो क्या है. लेट x इज इक्वल टू c1 एनी c1 कॉमा c2 एंड सो ऑन. ओके, these value x value any real number c1 c2 any real number. Okay, calculated maybe 1 maybe 2 maybe 3. Okay, according to the nature of the function these value of x will come. If that is cubic polynomial, so these two factor will come. Derivative of that will be quadratic. If function cubic, derivative quadratic, and derivative say 0, then two roots we know, so two values of x. If 4 degree polynomial function, then 3 degree will be the derivative, and 3 degree means derivative put 0, then 3 zeros will be of the cubic, and then 3 values of the x will come. Okay, ठीक है, clear. So now after that implies that find second derivative. Now second derivative means you know how can find second derivative. Second order derivative, double derivative, and which derivative here comes, again differentiate that will be second derivative. And second derivative means f double dash I written, it is d2y by dx we can say, or we can say this d2y by dx square. You know that
I told in the chapter differentiation. Okay, this again calculate this value at x is equal to C1 C2 at x is equal to C1 oblique C2 इन दोनों पर ये इस पर कैलकुलेट किया। अब कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू मे बी नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव और मे बी इक्वल टू 0। 3 केसेस आर देयर। तो फर्स्ट केस 3 केसेस आर देयर। ओके, मे बी f double dash x means C1, x means at C1, maybe this positive greater than 0 means positive. Understand, positive real number any. Okay, then this implies if positive है तो मिनिमा। This implies fx is minima ओके, मिनिमा पॉजिटिव है तो मिनिमा एट पॉइंट ऑफ मिनिमा एट C1 पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, दिस इज द मिनिमा if positive. Understand, minima. Or the second case, if f double dash at C1 value is less than 0 means negative. It means any negative real number. Okay, any negative real number. If value of the double derivative at x is equal to C1, then this implies C1 is called the C1 is point of maxima. C1 is point of maxima. Understand this thing. If negative double derivative value negative at x is equal to C1, then C1 is point of maxima. And function value ये तो डबल डेरिवेटिव है। देन फंक्शन वैल्यू fx वैल्यू at C1 is called the maximum value, and if this C1 is point of minima here in first case, then value of the function at C1 is called the minimum value of the function. Here maximum value of the function. Similarly at C2, similarly at C3, we have to check the double derivative value at the different values of x, which calculated from the first derivative putting equal to 0. Okay, so different values, at that value double derivative value we have to check negative or positive. Or third case if double derivative value at x is equal to C1
इज इक्वल टू 0, 3 केस हैं. इफ 0 then neither maxima nor minima, then this implies neither maxima nor minima. So be careful this method, maxima, neither maxima nor minima, okay, nor minima. So ये जब केस ऐसा we can't say, यानी neither maxima nor minima we can't say, यानी failed, derivative failed to say means second derivative failed, f double dash x is failed, okay. Understand, this is 1 marks option question कि when double derivative is 0 then second derivative test failed, second derivative test failed at this third case if double derivative is 0, okay. So be careful about this. Then फिर कहाँ जाएंगे, फिर we are going again on the first derivative. जब कोई फंक्शन सेकेंड डेरिवेटिव पर वैल्यू 0 दे देता है तो हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को फेल्ड मानते हैं कि फेल हो गया टू चेक मैक्सिमा मिनिमा, फेल्ड. तो अब इस केस में जब ये फेल्ड हो गया तो हमें क्या करना है, वी आर गोइंग अगेन एट द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इस पर. तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से मिनिमा एंड मैक्सिमा बताना होगा, ओके. दैट आई विल टेल यू, ओके, इन द नेक्स्ट. टुडे ओनली दिस एक्सप्लेन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. नाउ क्वेश्चन 1 वी हैव टू डू. व्हाट इज क्वेश्चन 1? सी इन एनसीईआरटी बुक. क्वेश्चन 1 इज इन एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 6.3. व्हाट इज क्वेश्चन 1? सी क्वेश्चन 1. This is find the maximum and minimum values if any of the following function given by these. So here general method also we have to discuss. One method I discussed you, second derivative test. Now general method in the question I will tell you if question in the form of like that, here quadratic whole square form we can make and from that we can find, okay. As here question 1, so question 1 I will tell you by general method fx, basic method. Fx is equal to given in the quadratic form 2x minus 1 whole square plus 3, 2x minus 1 whole square minus 3, okay. This is given question, okay. Now how can tell about this function, ठीक है. this, okay, see this, ये डबल डेरिवेटिव फेल्ड हो गया यहाँ पर, ठीक है. इज फेल्ड यानी f double dash x is failed at this third case, okay. Now question this, be careful how can do, find maximum minimum value of the function if possible. Maximum minimum value, okay. So direct you can see here what, के whole square of any number always positive, okay. Understand, never be negative. 2x minus 1 whole square, you know whole square will be positive. If 2x minus 1 is negative at any value of x, then whole square will be positive. 2x minus 1 value is positive, then whole square will be positive. Positive square positive and negative whole square also positive. So we know
सो वी कैन से यहाँ पर इसके मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू में हमें कौन सी वैल्यू पता है कि ये 0 होगा और ग्रेटर देन 0, यानी वी कैन से कि 2x मेथड वी कैन से 2x माइनस 1 होल स्क्वायर, दिस फंक्शन में ये ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 पॉजिटिव होगा, वी नो, ठीक है। अब आफ्टर दैट जब ये इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी 0 और मैक्सिमम भी कांट से इनफाइनाइट तक जाएगी, तो यहाँ मिनिमम वैल्यू इसकी, तो आप क्या कहेंगे मिनिमम, अंडरस्टैंड ये मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू अंडरस्टैंड कितनी होगी इसकी, मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है इसकी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ, अंडरस्टैंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकल कर आई, कितनी बनी, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 बन गई इस पार्ट की, दिस इज 0 एंड -3, दिस इज मिनिमम वैल्यू, so minimum value is possible, so minimum value of fx is minimum value of this -3, so then this is equal to -3, this is minimum, why, because this value 2x minus 1 whole square is greater than equal to 0, then minimum value here 0, so minimum value ये 0 लिया and then -3, then -3, तो आंसर इज मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज -3, आंसर डन, बी केयरफुल, ठीक है। मैक्सिमम नॉट पॉसिबल, तो सिमिलरली यू कैन डू अदर पार्ट, क्वेश्चन 1 अदर पार्ट इज सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। सेकंड पार्ट यू कैन डू होल स्क्वायर वी कैन मेक, तो व्हाट विल बी इन सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 1 सेकंड पार्ट, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो सेकंड पार्ट में क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर क्वाड्रेटिक, 9x स्क्वायर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2 प्लस 12x प्लस 2, दिस मेथड जनरली यूजिंग फॉर द क्वाड्रेटिक ओनली, ठीक है, बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर में लिखा जा सकता है क्वाड्रेटिक। तो अब इस फंक्शंस को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम कैसे बना सकते हैं, तो 9 किसका होल स्क्वायर है, 3x का, ठीक है बेटा, 3x का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 3 जा 6 2 जा 12, तो मीन्स यहाँ पर हम बना लें 12x है हमारे पास, तो क्या होगा मिडल टर्म, जब 2ab होता है, ठीक है, 2 इंटू a इज 3x, तो 2 3 जा 6x इंटू 2, तो b मस्ट बी 2, ओके बेटा, सी दिस डायरेक्ट, तो दिस होल स्क्वायर वी कैन राइट, कैसे बना, a स्क्वायर ये रखा प्लस बी स्क्वायर, 4 हमें चाहिए, यहाँ 2 है तो प्लस 2 माइनस 2 हमें दे देंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 आ चुका और यहाँ 2 ही था, तो यानी 2 माइनस 2 देना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब सॉल्व करें, और 2ab 2 इंटू 3x इंटू 2, 2 2 जा 4 3 जा 12x, 2ab यहाँ है तो ये प्लस 4 बन गया, यहाँ था प्लस 2, तो यानी प्लस 2 ज़्यादा लिख दिया, तो -2, वी कैन राइट दिस, यू कैन सॉल्व बैक, ओके, परफेक्ट स्क्वायर बन गया ये, देन वी कैन राइट दिस अगेन सेम थिंग, बिकॉज 3x प्लस 2 होल स्क्वायर फॉर एवरी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी, ये भी लिख दें यहाँ, फॉर एवरी
x belongs to real number. Understand this thing. कोई भी रियल नंबर वैल्यू x की बने उस पर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बिकॉज होल स्क्वायर होगा. इफ इनसाइड नेगेटिव देन होल स्क्वायर पॉजिटिव, अगेन पॉजिटिव होल स्क्वायर पॉजिटिव. वी नो दिस, सो बी केयरफुल. दिस इज द स्टैंडर्ड थिंग. देन दिस इम्प्लाइज हमें क्या मिलता है, हमें जो एफ डैश एक्स की वैल्यू है वो यहाँ मिनिमम है. यहाँ भी चूंकि मिनिमम 0 है और मैक्सिमम इसके इनफाइनाइट तक जाएगी. वी कांट राइट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस होल स्क्वायर. ओके, सो मिनिमम वैल्यू वी कैन से. सो इन दिस केस आल्सो मिनिमम वैल्यू. ओके बेटा, in this case also minimum value of fx, minimum value of fx. अब वर्ड लिख दिया मैंने पूरा, नहीं तो शॉर्ट में लिख सकते हैं. मिनिमम वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ दिस 0 पुट किया यहाँ, दिस इज 0 एंड -2. ओके बेटा, देन इज इक्वल टू -2. तो आंसर -2. minimum value of this function is -2. Clear this? Okay, now similarly you can do next part, third part. Okay. थर्ड पार्ट यू कैन डू बाई ओन. कैसे, इसमें माइनस है बाहर तो x माइनस होल स्क्वायर 0 होगा. हैं, ध्यान देंगे. -0, tan -0 और tan -0 से ग्रेटर कोई नंबर. tan -this, tan -this, tan -this, वी कांट से दैट, बट tan -0 इज tan, मैक्सिमम tan. तो यहाँ मैक्सिमम tan होगी. ओके, बिकॉज माइनस है यहाँ पर तो ये माइनस वैल्यू होगी, ये सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस 10 है तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू 10 हो जाएगी. डन, you can understand. Now fourth part I am telling. Fourth part is cubic given. See, fx is equal to x cube plus 1. अब क्यूब देखना है आपको. फॉर एवरी नेगेटिव क्यूब विल बी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव, एंड पॉजिटिव क्यूब पॉजिटिव. तो नेगेटिव क्यूब अब नेगेटिव होगा +1. अब कितना नेगेटिव वी कांट राइट. मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू इन द क्यूब वी कांट राइट. भाई 0 तो लिख सकते हैं हम, चलो 0 का क्यूब 0, बट वो मिनिमम मैक्सिमम कैसे होगा. वो तो पॉजिटिव की वैल्यू और भी पॉजिटिव मैक्सिमम हो जाएगी, और नेगेटिव भी नहीं हो सकता x 0 पर. सॉरी, मिनिमम भी नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि मिनिमम जो है -1 पर वो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी तो और भी कम हो जाएगा. देन वी कांट से. सो हियर फॉर दिस वी हैव टू यूज द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. तो f डैश x, हियर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. f डैश x वी आर टेकिंग, यू अंडरस्टैंड. डेरिवेटिव लिया, कितना बना 3x स्क्वायर. सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट 3x स्क्वायर प्लस 0, 1 का डेरिवेटिव 0. ओके बेटा, अंडरस्टैंड. फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया. अब फर्स्ट डेरिवेटिव पुट इक्वल टू 0 टू फाइंड द x. मेथड इज देयर, पुट इक्वल टू 0. ठीक है ना बेटा. फर्स्ट डेरिवेटिव पुट इक्वल टू 0 एंड फाइंड x. Then x value from here what will come 0. Okay, x value 0 आ गई. ठीक है बेटा. At a double derivative now what is the method? Double derivative यानी again differentiate this. So this implies again differentiate both side. You have done. तो double derivative is equal to पर फॉर्मूला x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 3 या 6x. अंडरस्टैंड. तो दिस डेरिवेटिव वैल्यू एट x इज इक्वल टू
0, x0 है आपका फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर। तो एट x इज इक्वल टू 0, डबल डेरिवेटिव वैल्यू, दिस वैल्यू अगेन 0 हो गया, 6 इंटू 0 0, तो सेकेंड डेरिवेटिव फेल्स, एफ डैश एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव फेल्ड। तो टू से, तो अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, आई टोल्ड यू आई विल टेल, नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव फेल्ड, ये फेल्ड हो गया, ठीक है। टू से मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, फेल्ड हो गया ये टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे जाएंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, आई वांट टू टेल यू, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0 है यहाँ पर c1, तो इसके लेफ्ट में एंड राइट में दोनों में वैल्यू देखेंगे, ठीक है बेटा, लेफ्ट में एंड राइट में, अंडरस्टैंड। इसके लेफ्ट में क्या, कोई भी वैल्यू लेफ्ट में ले लो, 0 के लेफ्ट, आप कहेंगे x इज इक्वल टू 0, लेफ्ट साइड फंक्शन वैल्यू, ये एट दिस का मीनिंग, जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव वैल्यू वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, ठीक है, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश लेफ्ट हैंड वैल्यू निकाला, इसमें क्या बनेगा, 0 के लेफ्ट में कोई वैल्यू पुट किया, तो एफ डैश हमारा क्या है, 3x², तो 3 इंटू लेफ्ट में हमने क्या लिया, 0 माइनस h, अंडरस्टैंड, ठीक है बेटा, लेफ्ट में यू नो, तो 0 माइनस h एंड देन हियर इट इज होल स्क्वायर दिस, तो देन इसको कैलकुलेट किया एंड h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, चलो 3 इंटू, अब माइनस h का होल स्क्वायर क्या बन गया, h², ठीक है, देन ये क्या बन गया, 3h², देन 3, ये h इज 0, 3 इंटू 0 इक्वल टू 0, ये भी 0 बन गया, ठीक है, ये 0 बन गया, लेफ्ट हैंड में 0 बन गया, और राइट हैंड में देखो क्या बनेगा, अब राइट हैंड में एफ डैश एट x इज इक्वल टू राइट हैंड ऑफ 0, 0 के राइट में, 0 के राइट में इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू, डेरिवेटिव हमारा 3x² है, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू, राइट में 0 प्लस h, 0 प्लस h होल स्क्वायर, ये भी आपका क्या बन गया, ये भी जब h 0 है, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये भी 0 बना, ये भी 0 बन गया, राइट भी लेफ्ट भी, तो इट मीन्स ध्यान देंगे कि नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ये फेल्ड हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव भी, बिकॉज एक साइड नेगेटिव दूसरी साइड पॉजिटिव आए, या एक साइड पॉजिटिव दूसरी साइड नेगेटिव, या दोनों ही नेगेटिव या दोनों ही पॉजिटिव आ जाएं, तो वो दोनों ही नेगेटिव आ जाएं, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो इसमें इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ओके। सो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा हेयर इन दिस केस, क्योंकि ये एक ही वैल्यू दे रहा है, सेम वैल्यू दे रहा है, ओके। और इसको एक मेथड और है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो इसमें, मान लीजिए आप इसमें 3 इंटू, देखो लेफ्ट में, फर्स्ट लेफ्ट में आप क्या करते हैं, इसकी वैल्यू मान लीजिए आप -1/2 ले रहे हैं लेफ्ट में, तो 3 इंटू -1/2 होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो क्या बनती है, -1/2 होल स्क्वायर प्लस 1/4, तो 3/4, ठीक है बेटा, ये बनती है। अब देखो फिर सेकंड राइट में देखो,
राइट में वैल्यू क्या बनती है, राइट में इसको मान लीजिए 1/2 ले रहे हो, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी बनती है, ये भी 3/4, तो दोनों ही सेम आ रही है। ओके, राइट में भी लेफ्ट में भी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो इट मीन्स नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो वी कैन से इन दिस क्वेश्चन नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ओके, क्लियर, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 वी कैन डू। See what is question number 2. Question number 2 in your book, find the maximum and minimum values if any of the following functions given by fx is equal to, first part question number 2. फर्स्ट पार्ट मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है, इसको भी देख लें। fx इज इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 2 माइनस 1, मॉडुलस x प्लस 2 माइनस 1। अब मॉडुलस वी नाउ, जैसे होल स्क्वायर वी नाउ पॉजिटिव, ऐसे मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव वी नाउ। सो वी नाउ वी हैव टू से as modulus x plus 2 will be greater than and equal to 0। ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मॉडुलस हमेशा इनसाइड आपका x प्लस 2 की वैल्यू नेगेटिव है, तो मॉडुलस ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। एंड अगर x प्लस 2 पॉजिटिव है तो उसका पॉजिटिव रहेगा, अगर ये 0 है तो ये x प्लस 2 अगर 0 है यानी x इजिकल टू माइनस 2 है तो वो ये 0 रहेगा। तो इसमें मिनिमम वैल्यू हो गया, सो मिनिमम। ओके बेटा, क्लियर, अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इम्पोर्टेंट थिंग। सो मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx विल बी इक्वल, ये हो गया आपका 0, मॉडुलस x प्लस 2 मिनिमम है 0 और ये माइनस 1, सॉल्व किया तो वैल्यू इक्वल माइनस 1 आंसर। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन माइनस 1। डन, ओरल क्वेश्चन यू कैन से gx माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 3। अब देखो यहाँ मिनिमम 0 है x प्लस 1 की, तो बाहर माइनस हो गया, तो मीन से मैक्सिमम वैल्यू हो गई, इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है, ये माइनस है ना यहाँ पर, दैट्स वाई। तो x प्लस 1 मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस हो गया तो लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू इज 0 of this minus x plus 1, maximum value is 0, so here maximum value is 3। okay बेटा, maximum value सेकेंड केस maximum value 3 हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड ट्रिग्नोमेट्री, hx थर्ड पार्ट, any function third part hx is equal to sin 2x plus 5, trigonometry। sin of 2x plus 5, ठीक है बेटा, ध्यान दें। तो बताओ इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, साइन ऑफ एनी एंगल, साइन ऑफ एनी एंगल,
मैक्सिमम वैल्यू इज 1 और मिनिमम -1। तो साइन ऑफ 2x + 5 की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज एंड इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय, तो अब क्या कहेंगे इसमें, हम ये लिखेंगे कि साइन ऑफ x, we know sin of x is greater than -1 and equal and less than and equal 1, we know this। ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड। एंगल बढ़ता है तो वैल्यू बढ़ती है और 90 पे ये 1 हो जाता है। ठीक है, इफ 2x इज 90 डिग्री देन 1, तो ये 2x है तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू होगी वो भी इतनी ही बनेगी। तो साइन 2x ये इसी के बीच में आएगा। ठीक है, अब +5 है तो आप इसमें +5 बनाना है तो यहाँ क्या बना लें, साइन ऑफ 2x + 5 ऐड किया हमने 5, यहाँ भी ऐड हो जाएगा 5। ओके बेटा, यहाँ भी ऐड हो जाएगा 5। तो 5 ऐड किया तो ये कितना बन जाएगा, -1 + 5 तो +4। ओके, सो इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके बीच में होगी, 4 और 5। तो वी कैन से ये फंक्शन हो गया hx। सो दिस इज hx, फंक्शन डेवलप कर दिया आपने। इसकी वैल्यू किस किस के बीच में होगी बेटा, 6 और 4। डन। हैंस मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन बिटवीन 4 और 5। तो मिनिमम 4, मैक्सिमम 6, बोथ वी कैन राइट। नेक्स्ट, इज fx इज इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन है। ठीक है, फोर्थ पार्ट, फोर्थ fx अंडरस्टैंड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन फंक्शन है, साइन 4x + 3, साइन 4x एंड +3 अलग है, ब्रैकेट नहीं है इसमें। ठीक है, ये देखो आप ध्यान से, तो मॉडुलस ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है बेटा, अब आप क्या कहेंगे, सबसे पहले आप इसको कहेंगे कि साइन 4x की वैल्यू किस किस के बीच होती है, साइन ऑफ 4x, इसकी वैल्यू साइन ऑफ एनी एंगल बिटवीन 1 and -1। ओके, ठीक है जी, डन। ओके, देन अब नो इनके बीच में होगी है 4x में भी that sin 4x may be maximum this or minimum this, maybe x, what is x is different thing but sin 4x। now +3 ऐड किया हमने तो क्या बन गया, sin of 4x + 3
इसकी वैल्यू प्लस 3 ऐड किया, 3 और 1 4, एडिंग 3 बोथ साइड, 3 1 4, ओके। यहाँ पर ऐड 3 तो प्लस 3 माइनस 1 प्लस 2, तो ये किसके बीच में हो गया, 2 और 4 के बीच में बन गया ये, ओके बेटा। अब यहाँ मॉडुलस है, अब आप ध्यान देंगे तो ये तो पॉजिटिव ही है, ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा, तो मॉडुलस अप्लाई किया तो साइन ऑफ 4x प्लस 3 मॉडुलस, तो मॉडुलस अप्लाई किया तो मॉडुलस 4 ही रहेगा और मॉडुलस 2 ही रहेगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गया, मैक्सिमम 4 मिनिमम 2, डन। मैक्सिमम 4 मिनिमम 2 ऑफ दिस फंक्शन बिकॉज दिस इज योर फंक्शन। तो fx वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, आंसर। तो मैक्सिमम 4 मिनिमम 2 you can say. So like this you can do the questions. Then last question, fifth part also we should do. What is the fifth part of question 2? Fifth part, hx is equal to fifth part x plus 1, x plus 1, x belongs to, अब x किसको बिलोंग करता है, ये इसने लिखा है यहाँ पर कि इस डोमेन में बताइए x बिलोंग्स टू -1 to 1, ओपन इंटरवल -1 to 1 ओपन इंटरवल। इसका मीनिंग x की वैल्यू ऑल रियल नंबर बिटवीन -1 to 1, ओके। तो नाउ हियर वी कैन से कि x की वैल्यू ग्रेटर देन एंड ओनली x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 कह रहा है, ठीक है, एंड लेस देन 1 कह रहा है, ओके। ये गिवन है यहाँ पर, तो इसका मतलब fx बनाइए x प्लस 1, तो ऐड कर दीजिए 1, एडिंग 1 बोथ साइड। जब 1 ऐड किया तो यहाँ 1 ऐड किया तो क्या बन गया 2, यहाँ 1 ऐड किया क्या बन गया, 1 ऐड किया तो 0, तो ये किसके बीच में बन गया, hx जो हमारा फंक्शन है x प्लस 1, इसकी वैल्यू लेस देन 2 बन गई एंड ग्रेटर देन 0 बन गई। तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू नियर टू 2 वी कैन से व्हाट इज दैट, एंड मिनिमम वैल्यू वी कैन से, तो मीन्स 0 और 2 के बीच में वैल्यूज आ गई, 0 एंड 2 के बीच में वैल्यू आ गई, तो हम मैक्सिमम वैल्यू कांट से एग्जैक्ट and minimum value also can't say. So no exact value, no exact CT, no exact minimum, no exact minimum or maximum value possible, no exact minimum value maximum value possible, ठीक है। यह आंसर लिखना होगा, क्यों, क्योंकि ये इक्वल नहीं है यहाँ पर कहीं भी, लेस देन ग्रेटर देन,
तो नियर टू टू लार्जेस्ट वैल्यू left hand near to 2, we can't write. And similarly greater than 0 mean near to 0 right hand, ठीक है, we can't say. यानी smallest positive real number we can't say near to 0, so we can't write the minimum and maximum. So this answer done. So these questions done. Now after that we can explain forward in the next video. You remember the test also. Okay, thank you. See, watch, like, share and subscribe the channel and send the videos to the other contact and guide them. They must watch, like, share and subscribe the channel and send the feedback in the comment box. Thank you.